کائنات میں بے شمار مظاہر ایسے ہیں جو تحیر اور اسرار کے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں. انہی میں ایک مقام لاہوت بھی ہے، جہاں ایک برگزیدہ ہستی شاہ بلاول نورانی کی درگاہ ہے، اور وہاں ایسی ایسی عقل سے ماورا انہونی چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے منسوب ایسی سحر انگیز داستانیں ہیں کہ انسان کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. تجسس انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور ہمیں بھی ہمارا تجسس درگاہ شاہ نورانی اور لاہوت لے گیا. ان مقامات سے وابستہ روایات محض میتھس ہیں یا ان کی کوئی تاریخی حقیقت بھی ہے؟ متھ بنیادی طور پہ جو گریک اور لیٹن کا ورڈ ہے، یہ اگر پیچھے دیکھو تو یہ مائتھولوجی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک ایسا فلسفیانہ تصور جس کے اوپر ایک پوری سویلائزیشن جو ہے وہ بنیاد اپنی بناتی ہے. لیکن متھ کے ایک دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں کہ کلیکٹیو لائے ہے. جب تمام لوگ مل کے ایک جھوٹ سوچتے ہیں تو کیونکہ تمام جھوٹ ہی سوچ رہے ہوتے ہیں تو ریلیٹیوٹی کی تھیوری پہ وہ تمام لوگ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو سچا مان رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جو ماضی سے چیزیں آتی ہیں وہ ہم بغیر اس کی تحقیق کیے آگے اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، تو اس طرح یہ پچھلی باتیں جو ہیں وہ چلتی آتی ہیں. بر صغیر پاک و ہند اولیاء کی سرزمین ہے. وسط ایشیا، ایران، مشرق وسطیٰ اور صحرائے عرب سے بڑے بڑے ولی خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے ہندوستان آئے. بابا کی آمد جو ہے نا وہ پیدائشی عراق سے آئے ہیں. عراق سے ہوتے ہوئے پھر ترکی، ایران، افغانستان سیر و تفریح کرتے ہوئے 4 بابا کے ساتھ ہم رفیق آئے تھے، اور جسے ہم ملنگ کہیں یا ہم سفر کہیں، وہاں سے آئے. انہی ولیوں کے روحانی فیض سے یہاں بت پرستی اور شرک کے اندھیروں میں کلمہ توحید کی روشنی نے اجالے بکھیرے. انہی پاک اور متبرک ہستیوں میں ایک حضرت شاہ بلاول نورانی بھی گزرے ہیں، جن کا مزار صدیوں سے مرجع خلائق ہے. سب نور کو ملا کے کپن تن بنا دیا، ان میں سے نورانی نور ہے، نورانی نور ہے، ہر بلا دور ہے، نورانی نور ہے. شاہ نورانی کا مزار کراچی سے تقریباً 135 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ہب کے راستے تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دشوار گزار پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن عقیدت مند سفر کی صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر شاہ نورانی کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ سچے دل کی حاضری سے منتیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں بھر آتی ہیں. لوگ یہاں اس لیے آتے ہیں کہ یہ صاحب مزار جن کی مزار پہ آپ ہو کر آئے ہیں، شاہ نورانی بابا، ان کی چلا گاہ ہے. یہاں پہ آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے بابا آئے تھے. یہاں پہ انہوں نے چلا کاٹا تھا، اللہ کی عبادتیں کی تھی، لوگوں سے دنیا سے ہٹ کے یہاں پہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی عبادت کرنے کے لیے. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. ضرور پوری ہوگی جو شرط ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کسی نبی اور پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہیں کریں. دوسری بات یہ کہ وسیلے کا تصور جو ہے یہ بالکل مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ سے رائج تھا. اگر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی دیکھیں تو حضرت آدم نے لرزش بھی جو ہے وہ محمد کے وسیلے سے مانگی. پھر احادیث اوپر تلے دیکھیں تو اللہ کے رسول نے اندھے کو کہا اپنے محمد کے
वसीले से। फिर हज़रत अली करम अल्लाह की जब माँ का इंतकाल हुआ फ़ातिमा बिन्त असद का, तो आपने उनकी कब्र में लेटे जाके रसूल पाक और कहा कि ए अल्लाह, ये मेरी बहन है, तू इसकी देखी और बिन देखे जो उसने गुनाह किए हों, मेरे वसीले से तो इसको माफ़ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा यही मन्नत मानी है कि अल्लाह ताला, मेरा नमाज कुरान बंद हो गया है, अल्लाह ताला मुझे किसी के वसीले से, वली के वसीले से मुझे नमाज कुरान वापस दे दे। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे नमाज कुरान दे दिया। हज़रत उमर ख़त्ताब इसके रावी हैं। आप कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए तो आपके चचा हज़रत अब्बास के पास हम जाते थे और कहते थे कि अब आप दुआ कीजिए बारिश की, ये कहत पड़ गया था मदीने का। फिर हज़रत अब्बास ने आपके चचा होने की निस्बत से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ भी कबूल की। लेकिन कबूलियत दुआ जो है ये शर्त के तौर पे हम नहीं कर सकते। अल्लाह तो ये कहते हैं कि कोई दुआ मैं रद्द करता ही नहीं हूँ। इसकी मैंने वहाँ मानी थी शाहकिक में, जब ये हुई नहीं थी, मैंने कहा अल्लाह मुझे बेटी देगा तो मैं यहाँ झूला चढ़ा के जाऊँगी। बहन के लिए मांगी थी और इंशाल्लाह पूरी हो गई वो। अल्लाह ने मुझे बेटी दी, फिर मैं गई थी झूला चढ़ाने वहाँ पर। बस ये है, ये अभी बोलती नहीं है, कहते हैं ये अल्लाह वाली है, अपना आप बोलेगी, इसलिए दोबारा आए हम लोग, मन्नतें पूरी हुई हमारी। जो दुनिया में आपकी दुआ पूरी हो गई, एक, जो दुआ अल्लाह आपको उससे बेहतर दे दे, दो, और तीन ये कि जब रोज़े क़यामत आप जाएंगे तो आपकी सारी मांगी हुई दुआएं जो हैं वो रोशनी के मीनारों और तहाइफ की सूरत में आपको लौटाई जाएंगी। लेकिन नफ्स देखिए क्या कहेगा उस वक्त, अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह अगर ये इनाम मिलता है दुआ ना कबूल होने का, तो आप हमें दुनिया में वापस भेजिए, हम वहाँ पे दुआएं करेंगे और आप हमारी दुआएं कबूल ना करना। खुदा ताला कहते हैं कि अगर मैंने इनको फिर भी दुनिया में भेजा और ये वहाँ दुआएं करेंगे, ये सब देखने के बाद भी इनका नफ्स ये कहेगा कि हमारी दुआएं दुनिया में पूरी हों। जिस तरीके से मन्नत माने, वो धागा लेके यहाँ बांधते हैं, फिर मन्नत मानते हैं, उसके लिए फिर आते हैं। उनकी मन्नत करने वाला तो रब है, मगर एक ज़रिया बन जाता है। होता है कि जब आप किसी चीज़ पे यकीन कर लेते हैं तो आपका निज़ाम जिस्म का जो है वो कबूल कर लेता है किसी भी इलाज को। मिसाल के तौर पर प्लेसिबो इफेक्ट, साइंस में एक चीज़ को कहते हैं कि जी अगर आपने एक खाली कैप्सूल दे दी 50 लोगों को और 50 लोगों को ऐसी कैप्सूल दी जिसमें दवाई थी, अगर खाली कैप्सूल वाले 50 लोगों को यकीन दिला जाए कि इसमें जो दवाई है वो तहकीक हो चुकी है और उसने हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, तो वाकई खाली कैप्सूल से उनको भी फ़ायदा पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो ईमान और अकीदे की बहुत बड़ी क़ुव्वत होती है, और इन मज़ारात पे जब इंसान अकीदत के साथ जाता है और वहाँ दुआ करता है तो परवरदिगार उसके सिस्टम निज़ाम को ऐसा बनाया है उसने कि वो दुआ उसकी जल्दी कबूल भी होती है। अल्लाह ताला जो शिफा भेजता है वो शिफा कबूल करता है उसका जिस्म। मन्नत बुनियादी तौर पे है अहद, अहद का नाम। आप अहद करते हैं और ये अहद आपने करना है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप मेरी इस बात को मुकम्मल कर दें, दुआ कुछ मैंने मानी और मैं उसके बदले में ये अहद करूँगा। मिसाल के तौर पे आप नमाज कर सकते हैं, खाना खिलाने की मन्नत मान सकते हैं, जो भी मन्नत माननी है आपने वो कर सकते हैं, या आपका वादा और अहद खुदा ताला से है। लाहूत लामका पहुंचने के दो रिवायती रास्ते हैं। एक रास्ता सहवन से आता है। हजरत लाल शाहबाज कलंदर का उर्स मुबारक जिस रोज खत्म होता है तो इरादतमंद लाहूत के लिए रखते सफर बांधते हैं और जान जोखों में डालने वाला इंतहाई तवील और दुश्वार गुजार रास्ता पैदल तय करते हैं। सेवन से लाहूत तक का सफर 10 से 12 दिनों में तय होता है। कलंदर पाक का जब उर्स खत्म होता है तो तकरीबन 1.25 लाख फुकरा वो यहाँ पर पैदल आती है। दूसरा रास्ता कराची से बरास्ता हब जाता है। अगर आप ली मार्केट से चलने वाली बसों में जाएं तो 6 से 7 घंटे लगेंगे। अपनी सवारियों में हो तो 3.5 से 4 घंटे में मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमने अपने सफर का आगाज सुबह के 4 बजे किया ताकि सवेरा होने तक लाहूत पहुंच जाएं। कराची से 30 किलोमीटर के फासले पे वाक़े शहर हब से बलूचिस्तान की सरहद शुरू होती है। यहाँ से एक रास्ता आरसीडी रोड को निकलता है जो खुजदार और मस्तूंग से होता हुआ कोयटा पहुँचता है, जबकि हब चौकी से दाएं तरफ निकलने वाली साकरान सड़क आपको लाहूत लामकान ले जाती है। हमारे मशाक ड्राइवर ने ये सफर 3.5 घंटे में तय करा दिया। आज मौसम बेहद हसीन और खुशगवार है। आसमान से बारान रहमत भी
वक्फे वक्फे से बरस रही है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। हमें भी ज्यादातर रास्ता सुनसान मिला, कहीं कहीं थोड़ी बहुत आबादी नजर आ जाती। मंजिल पर पहुंचे तो वहां जायरीन की एक बस भी उसी वक्त पहुंची। जिसमें से मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े जिए शाह नूरानी का नारा लगाते हुए खुशी खुशी उतरे। यह है इस रूहानी सफर का पहला पड़ाव, दरगाह मोहब्बत फकीर, जो शाह नूरानी के एक गुलाम थे। मुर्शिद ने अपने चहीते मुरीद को दुआ दी थी कि लोग जब भी मुझसे मिलने आएंगे तो पहली सलामी तुम्हें ही देंगे। इसलिए सदियां गुजर गईं और शाह नूरानी की जियारत को जाने वाले लोग रास्ते में पहला सलाम मोहब्बत फकीर को ही करते हैं। मोहब्बत फकीर ये सरकार के फकीर थे। जो भी सरकार के मेहमान आते थे उनकी ये खिदमत करते थे। जिन दिन सरकारों ने अपना पर्दा करने की कोशिश, तो उस दिन सरकारों ने बताया बाबा कि आप इस जगह पे रहें, पहले सलामी आपकी है, फिर बाद में सलामी हमारी। बाबा ने जिन हस्तियों को विलायत बख्शी, उनमें पहली सलामी जिसको कहते हैं मोहब्बत फ़कीर बाबा, वो बाबा के खिदमतगार थे। उसके बाद बाबा के पास मुरीदों ने भैंसें दी थी, उसकी भैंसों के संभाल इनकी जिम्मेदारी थी। ये दुनिया से बेनियाज रूहानी कदरों और रिश्तों की बस्ती है। दुनिया से किनारा करने वाले इन फकीरों और दरवेशों की एक अलग ही दुनिया है। इन्हीं में एक फकीर यहाँ मोहब्बत और अकीदत के धागे बनाता है। ये धागा फकीर का दुआ होता है, अल्लाह की रहमत है। जो बीमारी का लेके जाता है वो अल्लाह शफा करते हैं। यहाँ से आगे बस जैसी बड़ी सवारी नहीं जा सकती। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले जायरीन लाहौत और दरगाह तक पहुंचने के लिए एक छोटी गाड़ी में सफर करते हैं, जिसे मकामी लोगों ने केकड़े का नाम दिया है। जायरीन का अकीदा है कि जब तक शाह नूरानी का नारा न लगाया जाए, केकड़ा मुश्किल चढ़ाइयां उबूर नहीं कर सकता। हम भी अपनी जाती गाड़ी पर आगे बढ़े, थोड़ा दम लेकर। क्या वजह है कि शाह नूरानी की जियारत को लोग बार बार आते हैं। किसी का ये 7वां, किसी का 9वां और किसी का 12वां चक्कर है, और कोई पहली बार भी आया है। पहली मर्तबा आई हूँ। माशाल्लाह से यहाँ का मंजर ही ऐसा नजर आ रहा है कि आने को जी चाहेगा इंसान का। ये मेरा 7वां चक्कर है और 5 दफा मैं आई हूँ। मैंने मन्नत मानी है, अल्लाह ताला ने मेरी पूरी करी है। अगर आपने जो अल्लाह से अहद किया है 70 लोगों को खाना खिलाने का, 100 को खिलाने का, किसी अहद को पूरा करने का, जिस तरह आप इंसानों से अहद करते हैं तो पूरा करना अखलाकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए आपने जब अल्लाह से अहद किया तो एक आपके ऊपर ये भी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, होता ही कि जब आपने मन्नत मान ली, आपने एक प्रॉमिस कर दी, तो आपकी अकीदत उस हस्ती के साथ जो है, उस अकीदत की ताकत ये होती है कि वो चीज़ें हो जाती जो नहीं होती। कारोबार चलने लगता है, घर में नाचाकी ख़त्म हो जाती है, बीमारी चली जाती है, बच्चों की शादियां हो जाती है, और फिर आप उस मन्नत को पूरा करते हैं। तो मन्नत मानना कोई बुरी बात नहीं है, बस ये है कि इसमें शिर्क का एलिमेंट ना हो, बिद्दत ना हो किसी किस्म की। मन्नत बाय इटसेल्फ इज नॉट बिद्दत, क्योंकि मांग आप अल्लाह से रहे। देखिए ना, शिफा अल्लाह देता है, डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर वसीला होता है। तो ये मन्नत भी एक वसीला है अल्लाह से मांगने की, बस दैट्स इट।
इस इलाके में बिजली और गैस नापैद है। ज़ायरीन सारे इंतजामात करके आते हैं। अभी तो आए और बिस्तर वगैरह मिल जाएंगे, सब कुछ है, कनातें वगैरह दगियाँ सब है। एक तरफ शाह नूरानी से अकीदत और दूसरी तरफ लाहौत में मौजूद पुरस्रार चीजें। गोकल देव कौन है? गार में ऊंटनी क्या कर रही है? क्या वाकई लाहौत जिनों और परियों का मस्कन है? शाम 5 बजे के बाद किसी शख्स को यहाँ ठहरने की इजाजत क्यों नहीं होती? क्या वाकई अंधेरा फैलते ही पत्थरों में कुदरती तौर पर बने खूंखार जानवर और जिन्नात जिंदा हो जाते हैं? इसी तजस्सुस के तहत हम सफर पर आगे बढ़े और पहुंचे कदम गाह पर। बयान किया जाता है कि यह हजरत अली के पांव का निशान है और इस पर साथ ही नाम अली भी नक्श है। ये अली नाम इसमें लिखा हुआ है कुदरती। कैसे बता दें अंगुली से करके? ये ऐन नाम ये। और रिवायत के मुताबिक इस दूसरे पत्थर पर हजरत अली की ऊंटनी के पांव का निशान भी सब्त है। ये मौला अली के ऊंटनी का कदम है जो लाहौर के अंदर से लाया गया है। यहीं पर एक ऐसा पत्थर भी मिलता है जो रिवायत के मुताबिक खाट जबल से लाया गया है, जिस पर कुदरती तौर पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है और यहीं पर हजरत रहीम अली शाह बुखारी की दरगाह है। अब हम पहुंच गए हैं उस मकाम पर जिसे परियों का बाग कहा जाता है। रिवायत है कि यहाँ एक जालिम देव रहता था जिसका नाम गोकल था। जब शाह नूरानी इस इलाके में आए तो गोकल उनके मुकाबले पर आ गया, जिनका सरापा नूर देखकर गोकल फरार हो गया, इसीलिए इन्हें नूरानी कहा जाता है। उस दौर में यहाँ इस इलाके इस खित्ते में सवाए देव जिन्न परस्तान इस मखलूक के अलावा और बंदे की कोई ज़ात नहीं थी, समझे नहीं। उस दौर में बाबा की आमद हुई है। फिर यहाँ एक गोकल नामी देव था जो जिसका यहाँ कब्ज़ा था और जो भी जिन्न परस्तान देव थे उसके मुती थे, उसके ताबे थे, ठीक है। बाबा की जब आमद हुई तो फिर वो सब तहस नहस हो गए। गोकल नामी देव था, उसको बाबा ने कैद करवाया। जो उसके साथ साथी आए थे उनको अमर किया, बाबा ने हुक्म दिया कि इसको कैद करो। और जब अपने सरगुरु का इन्होंने ये हाल देखा, जो देव परस्तान जिन्न थे, तो कुछ भाग गए, कुछ बाबा के ताबे हो गए। वहाँ से फिर गोकल देव को उसने पकड़ के मारा और जंजीरों में कैद करके उस गार के नीचे जाके बंद किया इसको। हाँ, गोकल ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, बस ये इलाका छोड़ के जा रहा हूँ। बोला तुझे मैं माफ़ नहीं करूँगा और छोड़ूंगा नहीं। एक शर्त है, इसी गार के नीचे ये जो मैं चश्मा निकालता हूँ, ये चश्मा तुम निकालते, इसकी सफाई करते रहो तो तुम क़यामत तक जिंदा ही रहेगा। तो आज भी वो गोकल जो उस गार के नीचे कैद है। पहले हमारे बड़े कहते थे कि हर जुमे रात गोकल की यहाँ सलामी होती थी। वहाँ से निकलता था, या अली का नारा लगाता था बीच में आके, और तीसरा नारा आके इस चौखट पे लगाता था। ज़ियारत करके फिर यह वापस चला जाता था।
दरगाह शाह नूरानी अब आने ही वाली है। अब हम दरगाह शाह नूरानी पहुंच चुके हैं। नूरानी नूर है, हर बला दूर है, नूरानी नूर है, हाज़र है दूर है, हर बला दूर है, सब्र वाले के पास पास में बेसब्रों से दूर है, नूरानी नूर है, हर बला। ज़ायरीन की आंखों में अकीदत के दरिया बहते नजर आते। शाह नूरानी का उर्स माह रमजान की 9 से 11 तारीख तक होता है। लेकिन ज़ायरीन की आमद का सिलसिला साल भर जारी रहता है। शाह नूरानी के मकाम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हजरत लाल शहबाज कलंदर भी हाजिरी के लिए आया करते थे। 4 बुजुर्ग हैं, वली हैं, वो 4 यार कहलाते हैं। इनका ताल्लुक पंजाब से है और कलंदर शहबाज सिंध में उसकी कलंदर लाल शहबाज और शेख बाउल ज़करिया, शेख बाउल मुल्तानी ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीद शकरगंज और शेर शाह सुर्ख बुखारी उच्च शरीफ वाले, ये चारों उस दौर में हाल हयात में बाबा के यहाँ आए थे। ये तो किसी को इल्म नहीं है जब मौला अली शेर खुदा ने आखिरी वसीयत की थी कि मेरा जसद मुबारक ऊँटनी पे जनाजे नमाज पढ़ा के रवाना कर देना, ये तो सबको इल्म है। उसके बाद का किसी को इल्म नहीं है कि वो ऊँटनी कहाँ चली गई। यही हकीकत है। और ऊँटनी इस इलाके में पाई भी गई और वो अभी तक लाहौत के अंदर मौजूद है। जो अल्लाह के वलियों ने, जैसे सिंध में बहुत बड़ी हस्ती है कलंदर लाल शहबाज, उसने जाहिर किया इस राज को। दूसरी हस्ती है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, बाबा फरीद है जिन्होंने ये वाज़े रास्ते दिखाए अपने फ़कीरों को, दरवेशों को, जिस वजह से ये रूहानी सिलसिले शुरू हैं यहाँ इस वादी में। ये एक अजीब सरशारी और सरमस्ती की दुनिया है। यहाँ झूठ और खोट नहीं है। यहाँ न दुनिया की हिर्स व तमा है, न फितना व फसाद। बस अल्लाह की मोहब्बत का नूर है जिसने माहौल को मुनव्वर कर रखा है। यहाँ अकीदतमंद आरिफाना कलाम गाते हैं और धमाल डालते हैं। दुनिया के झमेलों से दूर एक बेफिक्री की दुनिया। कितना सुरूर है यहाँ। बाबा जी की ज़ियारत करने जा रही हूँ और वहाँ जो कुछ है वहाँ की ज़ियारत करूँगी इंशाल्लाह। वहाँ से मुझे काफ़ी फैज़ हुआ है। आज मैं अपने कदमों से माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चल के आई हूँ। जबकि मेरी मौत की हिचकियाँ लगी हुई थी तो मेरे को अल्लाह ने बचाया। दवाइयों वगैरह से किसी चीज़ से मुझे आराम नहीं आया, मगर जब सरकारों ने बुलाया तो अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया। दरगाह के साथ ही एक छोटा सा बाजार भी है जहां मज़ार पर चढ़ाने के लिए चादरें, मेवाजात, कड़े, अंगूठियां और पत्थर के नगीने मिलते हैं। फजा में चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू रची बसी है। दुनिया की फिक्रों से बेनियाज लोग पड़ाव डाले हुए थे। लकड़ियों से आग जलाकर खाना पका रहे थे। ये दरगाह शहर में होने वाले फसादात और अमन व अमान की खराब सूरत हाल से तंग लोगों के लिए एक गोशाए आफियत भी है। कराची की हालत तुम्हारे सामने। अभी भी हम निकल रहे थे तो हमारा सारा इलाका बिल्कुल बंद हो गया और तकरीबन काफ़ी लोग तो नहीं आए हमारे साथ।
हजरत शाह नूरानी ने गोकल को कैद करके उसे मुजाफात में पानी पहुंचाने के काम पर लगा दिया। यूं सदियों से इस चश्मे से परियों के बाग और दीगर खेत सैराब हो रहे हैं। ये एक परियों का बगीचा कहलाता था, ये पूरा बंद इलाका था। तो वहाँ जब गोकल को पता पड़ा कि कोई शख्स आ रहा है तो गोकल देव चंद कदम इस बगीचे से बाहर निकल के गया। देखा कि एक घोड़े पे सवार कोई शख्स आ रहा है, तो इसने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ इंसानों की जुर्रत नहीं है। कहा कि मैं आगे आ रहा हूँ और मैं आगे जाने की सोच रहा हूँ। तो इनकी आपस में बातों बातों में लड़ाई हो गई। फिर बाबा ने इसको पकड़ के गोकल देव को ज़मीन पे मारा। वहाँ जब इनकी कलामी हुई तो उसने अपना दांतन मुबारक बाबा के जो हाथ में था मुंह में वो निकाल के उस पत्थर पे मारा। पत्थर दो टुकड़ा हो गया, ठीक है नहीं, आधा ज़मीन में गया, अभी भी आधा वो जाहिर है। जिला लसबेला के 1907 के गजट में बयान किया गया है कि सन 1495 में शाह नूरानी यहाँ तशरीफ लाए तो उस वक्त ये बाग गोकल नामी एक अमीर आदमी की मिल्कियत था। सन 1767 में ठट्ठा में लिखी जाने वाली किताब तोहफतुल कराम में बयान किया गया है कि शाह नूरानी ने गोकल सेठ से ये इलाका लेकर इस जमीन को अपना मस्कन बनाया। अब दरपेश है इस सफर का असल इम्तिहान, लाहूत लामकां की जानिब पेशकदमी। शाह नूरानी से पैदल जायरीन को 7 पहाड़ उबूर करके ज़ियारतगाह पहुंचना पड़ता है। इस रास्ते से सिर्फ सख्त जान लोग ही गुजर सकते हैं। दूसरा रास्ता कदरे आसान है। गाड़ी के जरिए 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उस रास्ते पर लोहे की सीढ़ियां मौजूद हैं। देखने में ये सीढ़ियां कमजोर लगती हैं, लेकिन ये भी एक मौजज़ा है कि कई 100 मन वजन आसानी से बर्दाश्त कर लेती हैं। हमारी टीम के लहीम शहीम फव्वाद का बारें गिरा भी इन पतली सीढ़ियों ने बर्दाश्त कर लिया। सीढ़ियां उबूर करने के बाद पत्थरों में शेर और खूंखार बलाओं की शबीहें नजर आती हैं। कहीं कोई अजदहा नजर आता है तो कहीं शेर, कहीं अजदहे के मुंह से पानी निकल रहा है तो कहीं उसकी आंखों से। रिवायत है कि ये बलाएं अपना वजूद रखती थीं, मगर बाबा की करामात से पत्थर हो गईं। इसीलिए तो उनके अकीदतमंद कहते हैं, नूरानी नूर हर बला दूर। लोग यहाँ इसलिए आते हैं कि ये साहिब मज़ार, जिनकी मज़ार पे से आप होकर आए हैं, शाह नूरानी बाबा, इनकी चिल्ला गाह है। यहाँ पे आज से तकरीबन 400-500 साल पहले बाबा आए थे। यहाँ पे इन्होंने चिल्ला काटा था, अल्लाह की इबादतें की थी, लोगों से, दुनिया से हट के यहाँ पे खालिसतन अल्लाह को राज़ी करने के लिए और उनकी इबादत करने के लिए। बाकी यहाँ पे गार के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं, ऊँटनी सी बनी हुई है और साबुन बना हुआ है, अंदर एक छोटा सा हाथी भी बना हुआ है। ये चीज़ें शुरू से हमारे बड़े भी कहते हुए आ रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। अब इनकी हकीकत क्या है, बहुत से लोग अपने हिसाब से बहुत सी बातें मशहूर कर देते हैं, अपनी तरफ से कह देते हैं कि ये है, ये वो। अगर आप ये सोच के देखेंगे तो आपको शक्ल नज़र आएगी। मैं इसकी मिसाल दूं, हमारे सामने अगर पत्थर रखा हो बहुत बड़ा तो हमें वो पत्थर नज़र आएगा, संग तराश के उसके अंदर मुजस्समा नज़र आएगा। और वो करता क्या है कि फालतू पत्थर हटा देता है तो मुजस्समा, ये मुजस्समा उसके अंदर होता है।
تو جو چیز آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی کہ یہ اس چیز کا ہے، تو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا وہی ہے، کیونکہ یہ آپٹیکل ایلوژن ہوتا ہے. ایک ایسے شخص کو جس کو کوئی چیز نہ بتائی گئی ہو، اس کو آپ پتھر دکھائیں تو اس کو وہ شکل نظر نہیں آئے گی. لامکا کے پہاڑ کے باہر بھینس کے تھن جیسے پتھر بھی نظر آتے ہیں. روایت ہے کہ ان پتھروں سے کسی زمانے میں دودھ رستا تھا، لیکن جب کچھ لوگوں نے یہ دودھ بیچنا شروع کر دیا تو قدرت نے یہاں کے لوگوں کو اس قدرتی نعمت سے محروم کر دیا. یہاں سے آگے ایک مقام حضرت لال شہباز سے منسوب ہے. کہا جاتا ہے کہ شہباز قلندر نے یہاں آگ جلائی اور چلہ کشی کی تھی. اس طرف اوپر مسجد بنی ہوئی چھوٹی سی، یہ سامنے مین غار کا وہ ہے. اس کے بعد ہمیں ایک غار نظر آیا اور غار میں داخل ہوتے ہی پتھروں میں ابھرتا ایک شیر نظر آتا ہے. روایت ہے کہ یہ شیر ان زیارت گاہوں کی حفاظت پر مامور ہے. اس غار کے ساتھ ہی ایک اور غار ہے جس میں انسان سیدھے جسم سے داخل نہیں ہو سکتا. یہاں پتھر پر مسلسل پانی گرنے سے ایک خاص قسم کا صابن بنتا ہے. زائرین کا عقیدہ ہے کہ اس صابن سے منہ دھونے سے غار کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے. خیر ہم تو اپنے ساتھ روشنی لے کر گئے تھے، اس لیے ہمیں منہ دھونے کی ضرورت پیش نہیں آئی. جب آپ کسی اندھیری جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو واقعی کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، پاسبل ہے آنکھوں میں پانی ڈالنے سے تبدیلی آتی ہے اور کچھ دیر کے بعد آنکھیں ویسی دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں، جو کچھ دیکھ سکتی ہے اندھیرے میں، کیونکہ ہمارے پیوپلز جو ہیں آنکھوں کے وہ ڈائلیوٹ ہوتے ہیں. تو کم روشنی جب آتی ہے، نہیں ہوتی روشنی، تو آہستہ آہستہ آنکھیں جو ہیں وہ اس قابل ہوتی کہ تھوڑا بہت دیکھ لیں. تو پاسبل ہے یہ ہوتا ہو کہ کچھ دیر کے بعد اگر آپ اس غار میں رہیں، چاہے پانی نہ ڈالیں یا صابن نہ لگائیں، جو کچھ بھی ہے، آپ کو تھوڑا نظر آنا شروع ہو جائے. پانی سے ہے کہ جلدی نظر آ جائے گا. اسی غار کے آخری دہانے پر شاہ نورانی چلہ کاٹا کرتے تھے. یہاں بھی ایک چشمہ ہے اور ایک قدرتی پتھر کا پیالہ بھی ہے. اس میں پانی بھرا رہتا ہے اور جتنا بھی پانی نکالا جائے پانی واپس اپنی سطح پر آ جاتا ہے. غار میں پھسلن بھی زیادہ تھی، آکسیجن بھی بہت کم تھی، لیکن غار کے راستے میں انسانی پیروں سے ملتے جلتے گڑھے ہیں جو ایک ایک قدم کے فاصلے پر بنے ہوئے ہیں. انہی گڑھوں کی مدد سے اس غار میں چلنا ممکن ہو پاتا ہے. یہیں پتھر کی بنی ایک اونٹنی بھی ہے. پھر ایک خاص پتھر بھی ہے جو زمین سے نمودار ہوتا ہے اور چھت کی طرف بڑھ رہا ہے. روایت ہے کہ جس روز یہ پتھر لامکاں کی چھت سے ٹکرائے گا اس روز قیامت آ جائے گی. پتھر اور چھت میں چند انچ کا ہی فاصلہ رہ گیا ہے. اسی غار میں پتھروں سے جھانکتا ہمیں ایک ہاتھی بھی نظر آیا. ہم نے اس ہاتھی کا ذکر نہیں سنا تھا، شاید یہ ہماری ہی دریافت ہے. اور یہ ہے ایمان کی کسوٹی، ایک کھڑکی. کہا جاتا ہے کہ خدا کا سچا بندہ اس کھڑکی سے بآسانی گزر جاتا ہے اور کمزور ایمان والا اس کھڑکی میں پھنس کر رہ جاتا ہے. کرامات اور معجزوں کی اس دنیا میں یقیناً مبالغہ بھی ہوگا، لیکن اس سارے روحانی سفر کی اساس خدا کی ذات پر کامل یقین اور اولیاء کرام سے عقیدت کا سرچشمہ ٹھہرا. اور اس سفر میں یہ بھید کھلا کہ عقیدے میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے. عقیدہ اور عقیدت بے سہاروں کا سہارا ہے. बस मैं दरबारां ते इंज रैह्नी आं, जे घर जानी मांग लैनी, बस किसे को रोटी खा लैनी आं. हुण मैं गड्डी ते आई आं, लोरवां आके बैठी था, मैं कोई नहीं कराया, इंज थल्ले बैठ के उत्ते आ गई सीट ते. उन्हां मैनूं कुछ नहीं किया, अल्लाह पाक ने सुकून दे, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे. यकीनन ये अल्लाह की बारगाह की मकबूल हस्तियां हैं कि सदियां गुजरने के बाद भी लाखों लोग इनके मरकदों से फैज उठा रहे हैं.
लाहौत में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, यहां सब लाहौती कहलाते हैं। और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने दुनिया के खुशनसीब लोगों को लाहौती कहा।